Today we will study virus, one of the most important topics in biology for UPSC prelims. Viruses are important because they are responsible for many diseases like AIDS, COVID-19, polio, influenza, and etc. But scientifically, viruses are very unique because they lie between living and non-living things. Now, what is a virus? Viruses are the acellular. Acellular means it doesn't possess a cell. It just has a protein coat and genetic material inside it. Infectious particle, which means it causes various diseases and they can replicate only inside a living cell. Now, it means viruses are obligate parasites. इसका मतलब है उन्हें नेसेसरीली एक ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, टू रेप्लिकेट, and this organism is known as host. Now let us move to the discovery of virus. The discovery of virus began while studying a disease which is known as tobacco mosaic disease. साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि टोबैको प्लांट्स की लीव्स पर कुछ मोज़ैक जैसे पैटर्न्स दिख रहे थे, बट दे वर अननोन ऑफ द कोज. सो फर्स्टली एडोल्फ मेयर studied the tobacco plant. उसने infected tobacco leaves ली और उसका एक solution तैयार किया, and he found out that this solution is capable of causing infection to healthy plants. But he thought that it was caused by bacteria. Then another Russian scientist created a sap of, which means a solution of infected leaves, and passed it through a bacteria filter. For example, this is a bacteria filter. So he placed the solution here and pass it through this bacteria filter, and then the filtrate which was formed was sprinkled into the healthy plants, and he observed that the plant got infected. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो बैक्टीरिया फिल्ट्रेट है उससे भी ये जो पार्टिकल है वो पास हो गए हैं, और जब ये फिल्ट्रेट हेल्दी प्लांट्स के ऊपर डाला गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो गए. इसका मतलब क्या है कि जो ये डिज़ीज़ कॉज कर रहा है वो एजेंट बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया फिल्टर को पास करके भी फिल्ट्रेट के अंदर आ रहा है. After that, the virus was discovered. This is a tobacco mosaic virus. This is the RNA which causes the infection, and this is the protein. This tobacco mosaic virus caused the tobacco mosaic disease, and thus the virus was discovered. Now, the viruses are living or non-living? The answer is it possesses the characteristic of living organisms as well as of non-living organism. So, living organisms के characters कौन से हैं वायरस के अंदर? पहला, उनके अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, और
प्रोटीन भी होगा। उनके पास एक प्रोटीन की कोट होगा जिसके अंदर आरएनए या फिर डीएनए प्रेजेंट होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। दूसरा, वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, विच मीन्स अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं, बट ओनली इनसाइड द होस्ट, यानी किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकते हैं वो। नेक्स्ट इज दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। बट जो क्रिस्टलाइज्ड पार्टिकल हैं उनके अंदर भी लिविंग प्रॉपर्टीज होंगी। द अनदर living feature of virus is that they can be transmitted from infected host to healthy or uninfected host. Now let us study the non-living characteristic of virus. जो वायरस हैं वो लिविंग प्रॉपर्टीज आउटसाइड द सेल शो नहीं कर सकते। आउटसाइड द सेल दे कैनॉट शो लिविंग प्रॉपर्टीज। द नेक्स्ट इज दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। The another non-living character of virus is they can replicate inside the host but cannot grow. जैसे ह्यूमंस हैं वो एक छोटे बेबी से एडल्ट के अंदर ग्रो कर सकते हैं, उनके अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, वैसे वायरस है ग्रो नहीं कर सकते, बस वो होस्ट के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं। And the fourth characteristic is don't have, or the virus does not have metabolic pathway. Metabolic pathway means they cannot intake the food and produce energy from it. Now let us study the structure of virus. Virus has two main important components. One is protein and another is nucleic acid. They has a protein coat, यानी एक प्रोटीन का कोट या फिर कैप्सूल होगा जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगी। वो डीएनए भी हो सकती है और आरएनए भी हो सकती है, एंड टुगेदर दे आर नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड। जो प्रोटीन की जो कोट है उसे हम कहते हैं कैप्सिड, और जो न्यूक्लिक एसिड है उसके लिए वर्ड लिया गया है न्यूक्लियो। ये एक वायरस है, इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया एंड फेज मीन्स टू डिस्ट्रॉय। मीन्स वो वायरस जो बैक्टीरिया के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अब इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। ये इसके पास एक प्रोटीन की बनी हुई कोट है या फिर कैप्सूल है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। और ये इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्या है, डीएनए। और ये इसकी टेल है जो दूसरे सेल पे अटैचमेंट में हेल्प करती है। जो कैप्सिड है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है और इस एक सिंगल यूनिट को हम कहते हैं कैप्सोमियर। एंड द फंक्शन ऑफ कैप्सिड इज ये वायरस को होस्ट सेल में एंटर होने में हेल्प करता है। सेकेंड,
It helps in assembly. मीन्स वायरस को इकट्ठा होने में मदद करता है. ये हम आगे रेप्लिकेशन में देखेंगे. It also invokes immune response. विच मीन्स हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होता है जो क्या करता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उन्हें किल कर सकता है. सो जो ये कैप्सिड है ये हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स इन्वोक करने में कैपेबल होता है. अब जो वायरस हैं वो एनवेलप्ड भी हो सकते हैं विच कैन बी मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, और दे कैन बी नॉन एनवेलप्ड. Now let us study the process of replication in virus. For example, this is a host cell. So first process in the replication of virus is attachment. सबसे पहले वायरस अपने कैप्सिड की हेल्प से अटैच करेगा होस्ट सेल पर. Then the second step is entry. जो वायरस है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा. Now the third step is replication. ये जो प्रोटीन की जो कोट होती है ये अलग हो जाएगी और इसका जो डीएनए है वो अलग हो जाएगा, और जो वायरस का जो डीएनए है वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है और फिर इसी के साथ में रेप्लिकेट होगा. रेप्लिकेट होकर ये बहुत सारे वायरल डीएनए बना देगा. अब कुछ वायरल डीएनए तो एज इट इज़ रहेंगे और कुछ आगे ट्रांसलेशन करेंगे और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएंगे. अब इनका प्रोटीन भी तैयार हो गया और इनका जेनेटिक मटेरियल भी तैयार हो गया. अब फोर्थ स्टेप आता है असेंबली. अब जो वायरस हैं वो असेंबल हो जाएंगे और बहुत सारी वायरस की कॉपी बन जाएगी. नाउ द फिफ्थ स्टेप इज ये होस्ट की सेल को ब्रेक डाउन करके रिलीज हो जाएगा. अब ये किसी और सेल को जाके इन्फेक्ट करेगा और वहाँ पर भी ये सेम प्रोसेस रिपीट करेगा. द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज अटैचमेंट. द वायरस अटैचेस टू द होस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ कैप्सिड. देन इट एंटर्स द होस्ट सेल एंड डिसइंटीग्रेट्स. नाउ द जेनेटिक मटीरियल ऑफ वायरस incorporates into the genetic material of the host and replicates to produce many copies of its DNA. Some of its DNA copies forms protein by the process called transcription and translation. Then the protein coat and the genetic material assembles. Then comes the fifth step in which the virus breaks the host cell and releases. Now it goes and infect other cells and repeat the same process again and again. Now let us revise once again. अब हमने देखा कि जो वायरस हैं वो डीएनए वायरस भी हो सकते हैं और आरएनए वायरस भी हो सकते हैं. अब डीएनए वायरस का रेप्लिकेशन कैसे होगा वो एक जनरल प्रोसेस हमने पढ़ा. अब सबसे पहले जो वायरस है वो डीएनए, उसका जो डीएनए है वो होस्ट के अंदर एंटर करेगा, होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर. देन
वो उसका एंजाइम यूज़ करेगा जिसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज, यानी ये डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाता है। ये सब रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन it forms the copies of DNA. Then transcription takes place and form mRNA, and this is viral mRNA which is infectious to host. Then through translation it forms न्यू वायरल प्रोटीन। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है उससे डायरेक्टली डीएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स और ये जो नया वायरल प्रोटीन है ये दोनों मिलकर असेंबल होंगे एंड दे एग्जिट फ्रॉम द होस्ट सेल by destroying it, and then again goes to a new cell and infect it. सबसे पहले जो वायरस है वो एंटर करेगा होस्ट के सेल के अंदर, वो अपना डीएनए रिलीज करेगा और न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। देन विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इट फॉर्म्स मैनी कॉपीज ऑफ डीएनए। कुछ डीएनए की कॉपीज तो एज इट इज़ रहेंगी और कुछ आगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके नया वायरल प्रोटीन बनाएंगी। अब जो वायरल डीएनए है और वायरल प्रोटीन है वो दोनों असेंबल करेंगे और नया वायरस पार्टिकल है वो बन जाएगा और सेल से एग्जिट करेगा। नाउ हाउ डज अ आरएनए वायरस रेप्लिकेट? सबसे पहले आरएनए वायरस होस्ट के अंदर एंटर करेगा, होस्ट सेल के अंदर। अब वो यूज़ करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका क्या मतलब है? ये आरएनए पर ही डिपेंड होकर ये एंजाइम आरएनए बनाता है, यानी आरएनए पर डिपेंड होकर बहुत सी आरएनए की कॉपीज़ बनाएगा। इसका दूसरा नाम रेप्लिकेज भी है। अब ये जो एंजाइम है ये होस्ट के अंदर नहीं मिलता, ये वायरस के पास ही होता है। जो आरएनए वायरस हैं उनके अंदर रेप्लिकेज नाम का एंजाइम होता है। नाउ अब क्या बन गया? वायरल आरएनए बन गया। तो कुछ वायरल आरएनए तो एज इट इज़ रहेंगे और कुछ वायरल आरएनए आगे ट्रांसलेशन करेंगे और वायरल प्रोटीन बना देंगे। देन वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन मिलके असेंबल हो जाएंगे और नया वायरस का पार्टिकल बना देंगे। नाउ देयर इज़ अ स्पेशल वायरस विच इज़ नोन एज रेट्रोवायरस। जो रेट्रोवायरस है वो ह्यूमंस में एड्स कॉज करता है और ये इतना ज़्यादा हार्मफुल या फिर डेडली क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, अपने आरएनए को पहले डीएनए के अंदर चेंज करेगा और फिर होस्ट के सेल के अंदर एंटर करेगा, उसके जीनोम के अंदर एंटर करेगा और उससे नए वायरस के पार्टिकल्स बना देगा। जो रेट्रोवायरस होता है उसके पास में आरएनए होगा। अब ये एक एंजाइम का यूज़ करता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए से डीएनए बनाना। The retrovirus uses an enzyme called reverse transcriptase and form viral DNA. Now, this viral DNA use an enzyme called integrase. ये जो एंजाइम है वो वायरल डीएनए को होस्ट के डीएनए में
इंटीग्रेट होने में मदद करता है, एज इट नेम सजेस्ट इंटीग्रेस. नाउ process of transcription takes place and form new viral RNA, and through the process of translation new viral protein is formed. They assemble together and form the new virus particle. अब ये इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा और आगे जो हेल्दी सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करेगा और उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देगा. अब जो वायरस हैं, जो उनके पास डीएनए या फिर आरएनए दोनों प्रेजेंट हो सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल. तो जो मोस्ट डीएनए वायरस होते हैं वो होंगे डबल स्ट्रैंडेड, यानी उनके 2 स्ट्रैंड्स होंगे, जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है जो हमने पढ़ा है. और जो मोस्ट आरएनए वायरस होंगे उनके पास होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी एक ही स्ट्रैंड होगा. जो मोस्ट प्लांट वायरस होते हैं उनके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो मोस्टली वो वायरस होते हैं जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा. एंड मोस्ट बैक्टीरियोफेज which destroy the bacterial cells have double stranded DNA, and most animal virus have single stranded और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. यानी जो वायरस है उसके पास में डीएनए भी हो सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल और आरएनए भी हो सकता है. जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, बट मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. नाउ जो डीएनए है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है. नाउ there are 2 other terms. One is viroids. Viroids are smaller than virus. They doesn't have a protein coat. Lacks protein coat. They just have a free RNA. And they are also capable of causing infections. And another particle is known as prion. Prions have abnormally folded protein, and their size is similar to that of virus, and they cause many diseases. For example, mad cow disease. डिजीज़ है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर बहुत सारे PYQ हैं, एंड वी शुड रिलेट द टॉपिक ऑफ वायरस विथ करंट अफेयर्स. वो डिजीज़ जो वायरस के द्वारा कॉज की गई हैं उन वायरस के नाम याद करना इम्पॉर्टेंट है. जैसे एक बार क्वेश्चन आ चुका है स्वाइन फ्लू पे कि कौन सा वायरस है वो स्वाइन फ्लू कॉज करता है. H1N1 वायरस है वो स्वाइन फ्लू कॉज करता है. सो वी नीड टू स्टडी द डिजीज़. आगे आने वाली क्लासेस में हम डिजीज़ भी पढ़ेंगे. नाउ वाई वायरस को समझना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कंट्रोल डिजीज़, how to develop vaccines, and also in the biotechnology research. Now let us solve some PYQs. Virus can infect which of the following? Bacteria, fungi, plants. Select the correct answer.
Option A 1 only, option B 1 and 2 only, option C 1, 2 and 3, and option D is 2 and 3 only. Comment down the correct answer in the comment section. The next question is H1N1 virus is mentioned is news in relation to which disease? 1 is AIDS, B is bird flu, C is dengue, and D is swine flu. Now, third question is consider the following statement. Virus can be cultured on artificial medium. Virus replicate only inside the living cell. Which statement is correct? A 1 only, B 2 only, C both, or D none. Now that's all for today. Comment down the answers in comment section. Thanks for watching.